اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ ضروری نہیں کہ تم سرعام ایمان کا اظہار کرو، کیونکہ جو تمہارے دل میں مخفی ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو موت اور زوال کو یاد رکھے، اور وہ جس کے دل میں آخرت کی خواہش ہو۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے استغفار کرتا ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے، اور وہی مومن اللہ کے نزدیک عزت کے لائق ٹھہرا جس نے اس دنیا کی زینت کو ٹھکرا دیا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دو عورتوں میں سے ایک شرماتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کا بدلہ دے سکیں۔ جب موسیٰ نے اپنا سارا ماجرا سنایا تو اس نے کہا، تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شرماتے ہوئے کیسے چل سکتے ہیں دادا جان؟ حیا اسلام کی ایک صفت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہ کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے پر شرم محسوس کرنی چاہیے، اور نہ صرف اللہ سے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے شرم محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہماری ساری دعاؤں، رازوں اور عبادتوں کو جانتا ہے، اسی لیے وہ کائنات کے ہر انسان کے دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ سے بھی شرم کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے خدا کا احترام کرو، کیونکہ یہی اصلی مومن کی نشانی ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خود کے لیے کیسے شرم محسوس کر سکتے ہیں؟ خود کے لیے شرم محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اکیلے کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پر خدا کی سلامتی اور رحمتیں ہو موسیٰ۔ اچھا تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ تم پر بھی خدا کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے پیارے دوست احمد۔ میں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو بہت کارآمد ہے، جب ہمیں اونچے اونچے درختوں سے پھل اتارنے ہوں ان پر چڑھنے کے لیے۔ شاباش میرے بھائی، بہت اچھا کام کیا۔ یہ بہت تیز دھار والا پنکھا ہے۔ جب ہم اسے پھل اور خاص طور پر موٹے پھلوں پر لگاتے ہیں تو تب ہم اسے نیچے سے گھمائیں گے تو یہ گھومنا شروع ہو جائے گا اور پھل کٹ کے نیچے گر جائے گا اور ہمیں درخت پر چڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ بتاؤ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ یہ واقعی بہت اچھا ہے موسیٰ۔ اس سے ہمارے لیے پھل جمع کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ چلو اسے دادا جان کو دکھاتے ہیں۔ ہاں چلو۔ دادا جان، مریم،
मूसा ने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है। अच्छा, ये क्या चीज है मूसा? ये बहुत तेज धार परों वाला एक पंखा है जो कि फल तोड़ने के लिए बनाया है, खास तौर पर मोटे फलों के लिए। इसे किसी भी उम्र का कोई भी शख्स चला सकता है और आसानी से फल तोड़ सकता है। तुमने कहा कि हर उम्र के लोग, मेरे बारे में क्या? तुम एक परिंदे हो जन्नान, तुम्हें हमारे इन टूल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस तरह तख्लीक किया है कि तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। सन्नान एक परिंदा है, परिंदा है। तुम पर अल्लाह की रहमत हो मूसा। अल्लाह बहुत खुश होता है जब हम मेहनत करके अच्छा नतीजा हासिल करते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? जब अहमद दरख्त पर चढ़ रहा था तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि इस तरह उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। तो मैंने सोचा कोई ऐसा टूल बनाऊं जो इसको मदद दे और इसको दरख्त पर चढ़े बगैर इसका फल मिल जाए। मुझे इजादात पसंद है। चले फिर इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। चलो आओ बच्चों। सबसे पहले हम छड़ी का रुख उस फल की तरफ करेंगे जो हम तोड़ना चाहते हैं, फिर पंखे को यहाँ से घुमाएंगे तो फल कट के नीचे गिर जाएगा। ये तुम्हारी है ना इजाद मजे की कामयाब इजाद, रही। बताओ। ये तो अच्छा है, अब मैं अहमद की तरह भी फल उतार सकती हूँ। तुमने वाकई बहुत अच्छा दिमाग लड़ाया है मूसा। अल्लाह तुम्हें इस बात का बहुत अच्छा अजर देगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दूसरों को सच्चाई की तरफ बुलाते हैं तो उनका अजर उन लोगों के बराबर होता है जो उसकी पैरवी करते हैं। इसके बरक्स जो लोग दूसरों को बुराई की दावत देते हैं तो उनका हिसाब उन लोगों के साथ होगा जो अल्लाह और यौम आखिरत को झुटलाते हैं और सजा के मुस्तहिक होंगे। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का क्या मतलब है दादा जान? इसका मतलब है कि कोई इंसान अगर दूसरे इंसान को नेकी की तरफ बुलाता है तो उसकी नेकी का बराबर सवाब बुलाने वाले को भी मिलेगा, और इसी तरह बुराई के लिए बुलाने वाले पर सख्त अजाब नाजिल होगा। तो मूसा को हर बार सवाब मिलेगा जब भी हम इसकी ये इजाद को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मूसा, क्या मैं तुम्हारी इस इजाद को एक बार इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं मरियम, लेकिन तुम इसका ख्याल रखना ताकि ये सब लोगों के काम आ सके। परेशान मत हो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं अकेली जाकर दादी जान के लिए फल लाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये लो मरियम। तुम्हारा शुक्रिया मूसा, मैं तुम्हें इसे जल्द ही लौटा दूंगी, ठीक है? मरियम खूबसूरत है लेकिन वो ताकतवर भी है। मरियम बहुत छोटी है लेकिन ज़हीन है। ओह, अरे ये क्या, ये तो टूट गया। अब मैं मूसा को क्या जवाब दूंगी? मैंने इसकी हिफाजत का वादा किया था, अब मैं क्या करूंगी? काश कोई मेरी इसमें मदद करे। अब मैं क्या करूं? क्या बात है मरियम, तुम आखिर इतनी उदास क्यों हो? मैंने मूसा से उसका पंखा लिया था। जब मैंने इसे आजमाया तो ये मेरे से गिरकर टूट गया। अब उसे क्या कहूँगी? मैंने वादा किया था कि उसे सही सलामत वापस लौटाऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं इसे ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अभी चलो आओ, वापस घर चलते हैं। नहीं, तुम अकेले जाओ, मैं यहीं पे रुक के तुम्हारा इंतजार करूंगी अहमद। जब तक ये सही नहीं हो जाता मैं मूसा का सामना नहीं कर पाऊंगी। तो भाई कैसा है हमारा अजीम मोजिद? क्या हुआ मूसा, तुम इतने चुप क्यों हो? मैंने अपनी इजाद मरियम को इस्तेमाल के लिए दी थी, लेकिन अब मैं उससे वापस मांगते हुए घबरा रहा हूँ कि कहीं वो ये न समझे मुझे उस पर एतबार नहीं है। तुम वाकई बहुत हसास हो मेरे बच्चे। ये शर्म एक अच्छी सिफ्त है और ये एक अच्छे इखलाक के मालिक की निशानी है। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हया अच्छाई के सिवा कुछ नहीं लाती है।
सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुम परेशान मत हो बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं दादा जान। मैंने ये इसीलिए बनाई है ताकि ये लोगों के काम आ सके आखिरकार, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी नेकी का अजर जाया नहीं होने देता मूसा बेटा। क्या ख्याल है जब तक मैं जाकर थोड़ी सी लकड़ियां काट लाता हूँ तब तक तुम बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करो। कैसे हो अहमद बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? दादा जान, मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए है। हाँ क्यों नहीं, मुझे यकीन है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ क्या है? मरियम ने मूसा से फल जमा करने के लिए पंखा लिया था और गलती से मरियम से वो पंखा टूट गया। वो मूसा के सामने आने से शर्मा रही है, इसलिए मेरे साथ वो घर भी नहीं आई। वो सेब के दरख्त के नीचे मेरा इंतजार करेगी जब तक मैं उसकी मदद नहीं कर देता। मैंने उससे कहा कि मैं अकेले ठीक कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओह, ये दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। अल्लाह ने दोनों को बहुत ही अच्छी नेमत से नवाजा है, हया की। तुम्हारे आने से पहले मूसा कह रहा था कि उसे शर्म आ रही है कि वो मरियम से अपना पंखा वापस मांगे। अब हम क्या करेंगे दादा जान? मैं जानता हूँ कि क्या करना है। लाओ वो पंखा मुझे दो। ये लीजिए दादा जान। हमें मरियम और मूसा को इनाम देना चाहिए कि आज उन्होंने हमें इतना अच्छा इखलाक सिखाया, यानी कि हया का इखलाक। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो और अच्छी आदत पैदा करें। अपने अंदर शर्म और हया एक ऐसी खूबी है जो लड़के और लड़की दोनों में होनी चाहिए, और अहमद बेटा हमें इस खूबी को बरकरार रखना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है दादा जान। मैं दोनों को हया से मुतल्लिक एक कहानी सुनाऊंगा जो कि मैंने अपने बाबा से सुनी थी। शाबाश अहमद। जनान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ पर आओगे? तुम्हें क्या चाहिए अहमद? मूसा कहाँ है? घर के अंदर है। क्या तुम अंदर जाकर उसे बुला लाओगे? और अहमद बेटा जाओ और जाकर मरियम को ले आओ। जरूर वो वहीं होगी जहाँ तुम उसे छोड़ कर आए थे। जी ठीक है दादा जान। आज मेरे पास मूसा और मरियम को देने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनाम है, क्योंकि आज उन्होंने हमें हया के बारे में सबक सिखाया है। मूसा को शर्म आ रही थी अपनी चीज मरियम से वापस मांगते हुए कि कहीं मरियम इस बात का बुरा ना मान जाए, और जब मरियम से वो पंखा टूट गया तो वो मूसा का सामना करते हुए शर्मा रही थी, और यही वजह थी कि अपनी मदद के लिए मरियम ने फौरन अहमद को बुला लिया। और दादा जान ने कहा कि हम ऐसे 2 पंखे और बनाएंगे और मरियम और मूसा को इनाम के तौर पर देंगे। चलो अहमद, इन दोनों को ये पंखे इनाम में दे दो ताकि दोनों खुश हो जाएं। आपका शुक्रिया दादा जान। आपने सही कहा था कि शर्म और हया एक अच्छी खूबी है। देखिए, मुझे इसका इनाम मिल गया और अब हमारे पास ये 2 हैं। मुझे माफ कर दो मूसा, मेरी वजह से तुम्हारा ये पंखा टूट गया, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। परेशान ना हो मरियम, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि ये पहले थी। अहमद हमें शर्मो हया के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता है। चलो अहमद बेटा, जल्दी से अपनी कहानी शुरू करो। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे बाबा ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी हजरत मूसा और 2 लड़कियों की है। हजरत मूसा मिस्र से निकलकर फलस्तीन के एक शहर मदीन की तरफ रवाना हुए। वहाँ के लोग चरवाहे थे। हजरत मूसा ने बहुत से लोगों को कुएं में से अपनी बकरियों को पानी पिलाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां बहुत दूर खड़ी हैं। हजरत मूसा उनके पास गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं पानी पिला रही? तो उनमें से एक लड़की ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, हमारी हया इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह से मर्दों के बीच में जाएं। इसलिए जब तक ये अपनी बकरियों को पानी पिलाकर चले नहीं जाते, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकती। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पानी लाकर दिया। इसके बाद एक लड़की शर्माते हुए उनके पास आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि रास्ते पर पत्थर फेंकते हुए जाओ ताकि तुम रास्ता ना भूल जाओ, क्योंकि लड़कियां उनके साथ चलते हुए भी शर्म महसूस कर रही थीं। बहुत अच्छे अहमद, ये बहुत अच्छी कहानी थी।
शर्म व हया इस्लाम की बहुत खास सिफ्त है और हमें अपने अंदर ये खूबी पैदा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे दीन इस्लाम की कुल 70 शाखें हैं और हया भी उन शाखों में से एक शाख है। सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। शर्म हो हया